کراچی سے خیبر تک کے احوال میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ خانیوال میں غیرت کے نام پر قتل، اہل خانہ نے نوجوان لڑکی اور لڑکے کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا، ملزمان فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ملتان میں عوام ایکسپریس ٹرین حادثے کا ایک اور زخمی چل بسا، حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 7 ہو گئی، 9 افراد اب بھی نشتر اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ننکانہ میں ڈینگی ٹیم کی خواتین ورکرز کا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی مظاہرہ، سخت گرمی کے باعث 2 خواتین بے ہوش ہو گئیں، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے رائے ویڈ مارچ کی جانب کے خلاف ملتان میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے احتجاجی ریلی نکالی، پرجوش کارکنوں نے پش اپس بھی لگائے اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ملتان میں بلاول بھٹو زرداری کی 28ویں سالگرہ کی تقریب، حسب روایت جالے کیک پر ایسے ٹوٹے جو ہاتھ لگا وہ لے اڑے۔ اسپیشل آزادی ٹرین ملک کے مختلف علاقوں کا سفر کرتی ہوئی وہاڑی پہنچ گئی، شاندار استقبال، سینکڑوں مرد و خواتین اور بچوں نے ٹرین کے عملے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ خیرپور کے نواحی علاقے میں بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں اضافہ، علاقہ مکین پولیس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ مدین کے مختلف علاقے کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئے، اہم چاراہوں اور چوراہوں پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے تعفن اٹھنے لگا، قربانی کے جانوروں کی آلائشیں بھی تاحال نہیں اٹھائی جا سکی۔ سکھر میں خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر مذہبی جماعتوں کی زیر اہتمام ریلی نکالی گئی، شرکاء نے مطالبہ کیا کہ یوم شہادت پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ مردان میں سی ٹی ڈی نے کارروائی کرتے ہوئے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا، ارشاد علی عرف استاد جی 4 سدہ پولیس کو مطلوب تھا، تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ مالاکنڈ میں زہریلا کھانا کھانے سے 3 خواتین جاں بحق جبکہ 3 نوجوان بے ہوش ہو گئے، متاثرین کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوئٹہ میں کانگو کے شعبے میں مزید ایک شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، رواں سال کانگو کے شعبے میں اسپتال داخل کیے گئے مریضوں کی تعداد 130 ہو گئی۔ اور ڈیرہ مراد جمالی میں پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن بدنظمی کا شکار ہو گیا، کارکنان آپس میں گتھم گتھا، قائدین کی نصیحتیں بھی کام نہ آئیں۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں گے خانیوال سے، جہاں غیرت کے نام پر نوجوان لڑکا اور لڑکی کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا، مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ خانیوال کے نواحی علاقے میں سمرا اور آصف کو مسلح افراد نے کلہاڑیوں کے وار کر کے ہمیشہ کی نیند سلا دیا، حملے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گئے۔ تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشیں اپنی تحویل میں لے لی، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق دونوں پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے، اہل خانہ نے غیرت کے نام پر انہیں قتل کیا، تاہم مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
मुल्तान से जहां अवाम एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का एक और जख्मी चल बसा, जिसके बाद हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 7 हो गई है। मुल्तान में गुज़िश्ता हफ्ते पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को पेश आने वाले हादसे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 37 जख्मी हो गए थे। जख्मियों को मुल्तान के निश्तर अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही थी, जहाँ 42 साला नसीर नामी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मरने वाले शख्स नसीर का ताल्लुक रहीम यार खान से था। ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाले 9 अफराद अब भी निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। लाहौर से अहम खबर है, दुकान में डकैती की सीसीटीवी फुटेज वक्त न्यूज को मौसूल हो गई है। डाकू दुकानदार पर तशद्दुद के बाद हजारों की नकदी और कीमती सामान ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम है। फराज निजाम से मजीद अपडेट्स लेंगी। जी फराज बताएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका फैक्ट्री एरिया है जहां पर वक्त न्यूज को जो फुटेज मौसूल है उसमें देखा जा सकता है कि डाकू कैसे दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और असले की बंदूक की नोक पर दुकानदार को यरगमाल बनाकर और वहां पर जो ग्राहक मौजूद होते हैं उनको भी साइड में करके दुकानदार पर तशद्दुद करते हैं। और ये बताया जा रहा है कि हजारों रुपए की नकदी, इसमें मोबाइल फोन कार्ड्स भी हैं और दीगर जो अशिया हैं वो वहां से लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अभी तक मुल्जिमान तक नहीं पहुंच सकी है। जबकि जो दुकानदार है उसका ये कहना है कि जब डाकू उसकी दुकान पर पहुंचे तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी था, उससे भी असला छीन के अंदर दाखिल हुआ। दुकानदार को उन्होंने काफी देर तक तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। उसके बाद तमाम तर जो नकदी थी और दीगर जो सामान था लूट कर फरार हो गए। जी, सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मौसूल होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। फराज निजाम, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। खानका डोगरा में आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई रेस्क्यू 1122 की इमारत ताहाल फाल न हो सकी। बासर अफराद ने इमारत पर कब्जा करके जानवर बांध दिए हैं। खानका डोगरा में आवाम की सहूलियत के लिए करोड़ों रुपए की लागत से रेस्क्यू 1122 की इमारत बनाई गई, लेकिन 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद इमारत ताहाल पाल नहीं हो सकी। रेस्क्यू की 1122 की इमारत में रेस्क्यू की गाड़ियों के बजाय मवेशी बंधे हुए हैं, जो कि मुतालिका इंतजामिया की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। जबकि रेस्क्यू की इस इमारत को सब्जियों और फ्रूट के लिए स्टोर रूम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया के इल्म में तमाम तर सूरत हाल होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से तमाम सूरत हाल को फौरी नोटिस देने और मुतालिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। हासिलपुर में इंतजामिया की मिली भगत से बासर कब्जा माफिया सरगर्म हो गया। सरकारी अराजी गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की जा रही है। हासिलपुर में कब्जा माफिया बेलगाम हो गया। टीएमए और महकमा माल की करोड़ों रुपए मालियत की कीमती अराजी पर कब्जा किया जा रहा है। अहले इलाका का कहना है कि बासर अफराद इंतजामिया की मिली भगत से सरकारी जमीनों के प्लॉट बनाकर गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर रहे हैं। टीएमओ हासिलपुर, टीओआर, लैंड ऑफिसर, पटवारी कब्जा ग्रुपों के साथ मिली भगत करके कब्जे करवा रहे हैं और हुकूमत पंजाब के खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान करा रहे हैं। मस्जिद नमा बरामदा बनाया हुआ तो 2 सिर्फ मीनार रखे जिहदे सारा दिन क्रिमिनल किस्म के लोग गाड़ियां ते मोटरसाइकिलों ते आछी असला लैके आउंदे ने। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾउन बना के कट के ਇਹ बेचन लग रहे हैं। मुकामी अफराद ने वजीर आला पंजाब और आला हुकाम से कब्जा माफिया और उनसे मिली भगत करके सरकारी जमीनों को फरोख्त करने वाले एहलकारों के खिलाफ नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ननकाना में डेंगी टीम की खवातीन वर्कर्स ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। सख्त गर्मी के बायस 2 खवातीन बेहोश भी हो गई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ननकाना में इंसदादे डेंगी टीम में शरीक खवातीन वर्कर्स ने महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया है कि तनख्वाहों और बरात में इजाफा किया जाए और मुस्तकिल किया जाए। उनका यह भी कहना था कि मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान 2 खवातीन सख्त गर्मी के बायस बेहोश हो गईं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल गंदे नाले में गाय अचानक गिर गई और कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद भी गाय को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया।
खानेवाल के नवाही इलाके में गाय अचानक गंदे नाले में गिरकर फंस गई। गाय के मालिक और अहले इलाका ने मिलकर गाय को निकालने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। बिलाखिर रेस्क्यू 1122 को कॉल की गई। इमदादी टीमों ने रस्सियों की मदद से कई घंटे की कोशिश के बाद गाय को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। मालिक का कहना था कि ये गाय बहुत सरकश है और इसे काबू करना जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। उसने बरवक्त कार्रवाई पर इमदादी टीम का शुक्रिया अदा किया। उधर मुल्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। हिस्बे रिवायत जाले केक पर टूट पड़े, खाया कम लेकिन जाया ज्यादा किया। बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब पीपल्स पार्टी के मरकजी दफ्तर में हुई। हिस्बे रिवायत कारकुन केक पर झपट पड़े, जिसके हाथ जो लगा ले उड़ा। पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक विंग के ज़ेर एहतमाम पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 28वीं सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर जाले केक पर ऐसे टूटे कि खाया कम और जाया ज्यादा किया, जिसके हाथ जो लगा वो ले उड़ा। स्पेशल आजादी ट्रेन का विहाड़ी आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सैकड़ों मर्दों, खवातीन और बच्चों ने ट्रेन के अमले पर फूलों की पत्तियां निछावर की। स्पेशल आजादी ट्रेन विहाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंच गई, जहां लोगों की बड़ी तादाद ने ट्रेन का कौमी और जोशो जज्बे के साथ इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जाहिद इकबाल चौधरी और टीएमओ समेत रेलवे स्टेशन का अमला भी मौजूद था। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने फ्रूट्स और तस्वीरी गैलरियों को दिलचस्पी से देखा और सकाफत, कौमी हीरोज की कुर्बानियों और हुब्बुल वतनी के फरोग के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। नौजवान आज़ादी ट्रेन के करीब खुशी से भंगड़े डालते रहे, सेल्फियां लेते रहे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। स्टेशन मास्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने शहरियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी भरपूर इस्तकबाल की वजह से आज का ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है। और अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। खैरपुर में जामिया हिफ्जुल कुरान के लापता होने वाले 10 साला तालिबे इल्म का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। खैरपुर के जामिया हिफ्जुल कुरान का 10 साला तालिबे इल्म आसिफ अली गुज़िश्ता रोज मदरसे से लापता हो गया। ए सेक्शन पुलिस को इत्तला देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर सैकड़ों तलबा और बच्चों के लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस थाने के सामने रुकावटें खड़ी करके रोड ब्लॉक कर दी, जिस पर मुतालिका थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को बच्चे को जल्द तलाश करने की यकीन दहानी कराई। मदरसा ज़राए के मुताबिक गुमशुदा तालिबे इल्म का ताल्लुक गाँव खमरी बट तहसील सौले पट का रिहायशी है और अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। खैरपुर की तहसील सोबर डेरो में पुलिस की सरपरस्ती में बदमनी, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान समेत दीगर जराम आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। चन्ना मोहल्ले के रिहायशियों ने भत्ते की अदम अदायगी पर गली पर कब्जा करने वालों और चन्ना बरादरी के 2 अगवा होने वाले अफराद की अदम बाजियाबी पर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्जिमान कराची और रानीपुर की निजी बैंकों में डकैती की वारदातों में मुलव्विस हैं और पुलिस जानते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उनका कहना था कि इलाके में खौफो हिरास फैला हुआ है। उन्होंने आला हुक्काम से मुल्जिमान की गिरफ्तारी और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया और मुतालबा तस्लीम न होने पर गंबट राबीपुर कौमी शाहरा बंद करके एहतजाज करने की धमकी दी है। दादू में सुई गैस इंतजामिया की जानिब से गैस की बंदिश और प्रेशर कम होने के खिलाफ शहरियों ने सुई गैस ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। दादू की सुई गैस इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम करने और 20 से जायद कॉलोनियों में 2 माह से गैस बंद होने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। सैकड़ों अफराद ने सुई गैस ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना देकर ऑफिस का घेराव किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग और बंदिश का अमल जारी है, जिससे घरेलू सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि हजारों रुपए के बिल अदा करने के बावजूद भी इंतजामिया उनसे सौतेली मां जैसा सलूक कर रही है। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर गैस की बंदिश को खत्म किया जाए। बदीन के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी बन गए हैं। अहम शाहराहों और चौराहों पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। टाउन म्यूनिसिपल इंतजामिया के मुलाजमीन सफाई के लिए रिश्वत तलब करने लगे।
बदीन की अहम शाहराहों गोलारची, पुराना लारी अड्डा, करीम आबाद और दीगर इलाकों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कूड़ा करकट के बायस ताफुन फैल रहा है। मुतादिद मुकामात पर अब तक कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें भी नहीं उठाई जा सकी। शहरियों का सांस लेना भी दोभर हो चुका है। दूसरी जानिब अहले इलाका ने इल्जाम आयद किया है कि TMA मुलाजिमीन सफाई के लिए रिश्वत तलब करते हैं। अगर रिश्वत ना दी जाए तो इलाके को नजरअंदाज कर दिया जाता है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लाड़काना में बीनाई से महरूम 5 बहन भाई हिम्मत और हौसले की अपनी मिसाल आप हैं, जिन्होंने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। लाड़काना के इलाके चांडका पुल के करीब नजर महल्ला में पैदाइशी तौर पर बीनाई से महरूम 5 बहन भाई हिम्मत और हौसले की अपनी मिसाल आप हैं। इख्तियार अली, मुख्तार अली, साइमा, रुबीना और नाइला ने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। मुख्तार अली, जिसने बीनाई से महरूम होने के बावजूद इंटर का इम्तिहान पास किया, जबकि मुख्तार अली और इख्तियार अली महफिलों में गाना गाकर घर का सहारा बने हुए हैं। हाथ में कलम राहें रोशन है और प्यारे कदम। मुख्तार अली का कहना है कि वो गुजर बसर के लिए भीख मांगने पर यकीन नहीं रखते, बल्कि मेहनत को तरजीह देते हैं। गाना गाता हूँ और कभी कभी छोटे मोटे शोज मिलते हैं जिसमें से इतना ज्यादा गुजारा नहीं होता, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमने कभी हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह से मांगा है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि थोड़ा बहुत अगर जितना हो सके हमारे साथ कोऑपरेशन करें, कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए। पैदाइशी तौर पर बीनाई से महरूम ये बहन भाई तमाम अफराद के लिए एक मिसाल हैं, जो मुश्किल की इस घड़ी में भी रब का शुक्र बजा लाते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर है मालाकंड से, जहां जहरीला खाना खाने से 3 खवातीन जाँ भाग जबकि 3 नौजवान बेहोश हो गए, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मालाकंड के नवाही इलाका ढेड़ी में 6 अफराद ने खाना खाया, जिसके बाद अहले खाना और मेहमानों की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद को इलाका मकीनों ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 3 खवातीन दम तोड़ गईं। जहरीला खाना खाने से मुतासरा 3 नौजवानों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अस्पताल जराये के मुताबिक नौजवानों की हालत तशवीशनाक है। वाक़े के बाद जिले इंतजामिया और महकमा सेहत के अफसरान भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में खाना जहरीला होने की तस्दीक हुई है। लोहरदीर में JUI जिले मजलिस आमा का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में पार्टी के तंजीम उमूर के हवाले से अहम फैसले किए गए। 2 अक्टूबर को JUI के मरकजी अमीर मौलाना फजलुर रहमान के दौरा लोहरदीर की तैयारियों के सिलसिले में JUI लोहरदीर के अमीर मौलाना जाहिद खान की ज़ेर सदारत जिले मस्जिद आमला का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि 2 अक्टूबर को हेडक्वार्टर तीमरगरा में मुनक़िदा जलसा आम में अपरदीर, लोहरदीर और बाजोड़ से हजारों कारकुन शरीक होंगे। इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी कायद मौलाना फजलुर रहमान के दौरा लोहरदीर के तैयारियों और इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई और इस हवाले से 17 कमेटियां भी तश्कील दी गई। लोहरदीर के अवामी और समाजी हलकों ने अफगान मुहाजिरीन के कैंप खाली कराने और जमीनें उनके मालिकान के हवाले करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अगर ऐसा ना किया गया तो एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। लोहरदीर में मीडिया से कॉन्फ्रेंस करते हुए सियासी जमातों के रहनुमाओं और समाजी हलकों का कहना था कि 1979 में 216 मुआहिदों के तहत हुकूमत को मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए 300 एकड़ जमीन दी गई, लेकिन 1995 के बाद हुकूमत ने ना ही मुआहदे की तजदीद की और ना ही इन्हें कोई रकम अदा की गई, बल्कि जमीन के कुछ हिस्से पर ग्रेड की मंजूरी दी गई। जमीन मालिकान के एहतजाज पर हुकूमत ने मुहाजिर कैंप की जमीन खाली करा के मालिकान के हवाले करने का कहा। ताहम 1 साल गुजरने के बाद भी हुकूमत ने उनकी जमीन खाली नहीं कराई। कौमी मशीरान का कहना था कि मज़कूरा ज़मीन उनके ख़ानदानों की कमाई का वाहिद ज़रिया है। उनका कहना था कि अगर उनकी ज़मीन मुहाजिरों से खाली ना कराई गई तो वो मज़कूरा ज़मीन पर ग्रेड की तामीर की इजाज़त नहीं देंगे और ज़बरदस्ती अपनी ज़मीनें मुहाजिरीन से खाली कराने के लिए लाया अमल बनाएंगे।
دیر میں پولیس کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے نوجوان کے ورثاء نے لاش کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ دیر کے علاقہ سور کمر میں گزشتہ روز پولیس کی جانب سے اشتہاری ملزمان کے گھر پر چھاپے کے دوران فائرنگ سے سعودی پلٹ نوجوان عبداللہ جاں بحق ہو گیا۔ ورثاء اور اہل علاقہ نے نوجوان کی لاش مین شاہراہ پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ دیر پولیس نے پولیس گردی کا مظاہرہ کیا اور پیش آنے والا واقعہ ظلم اور بربریت کی مثال ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈی پی او دیر کے خلاف مقدمہ درج ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ اور اب رخ کریں گے گلگت بلتستان کا۔ گلگت بلتستان کے ضلع اسکردو میں سالانہ شگر کیٹو فیسٹیول جاری ہے۔ پہلے روز روایتی پولو کا کھیل منعقد ہوا جسے شگر کی ٹیم نے دلچسپ مقابلے کے بعد جیت لیا۔ ضلع شگر میں جشن شگر اور کیٹو فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ فیسٹیول 4 روز تک جاری رہے گا۔ ضلع انتظامیہ اور پولو ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ اس رنگا رنگ فیسٹیول میں پولو، فٹ بال، بلتی ثقافت، سیاحت پر مبنی تقریبات شامل کی گئی ہیں۔ 4 روزہ فیسٹیول کا آغاز پولو کے روایتی کھیل سے ہوا جس میں اسکردو، شگر، گانچے اور روندو کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس سلسلے میں ابتدائی میچ شگر، اماچا اور چھور بٹ کے مابین کھیلا گیا جس کے مہمان خصوصی قائم مقام ڈپٹی کمشنر امیر خان، رکن اسمبلی امتیاز حیدر اور مسلم لیگ نون شگر کے صدر طاہر شگری تھے۔ یہ میچ شگر کی ٹیم نے دلچسپ مقابلے کے بعد 4 کے مقابلے میں 6 گول سے جیت کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی ملک بھر سے سیاح شرکت کر رہے ہیں۔ تاہم سہولیات کے فقدان کے باعث عوام شکوے بھی کرتے دکھائی دے رہی ہے۔ اور اب رخ کریں گے بلوچستان کا۔ کوئٹہ میں کانگو کے شعبے میں مزید ایک شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ رواں سال کانگو کے شعبے میں اسپتال داخل کرائے گئے مریضوں کی تعداد 130 ہو گئی ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں کانگو کے وار جاری ہیں۔ کانگو کے شعبے میں فاطمہ جناح اسپتال میں ایک اور مریض داخل کرا دیا گیا ہے۔ 21 سالہ عمر امین کو ناک سے خون آنے اور شدید بخار کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا۔ متاثرہ مریض عمر امین کوئٹہ کے علاقے اسپننگ روڈ کا رہائشی ہے۔ مریض کے خون میں کانگو کا پتہ چلانے کے لیے ضروری ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ فاطمہ جناح اسپتال انتظامیہ کے مطابق رواں سال کانگو کے شعبے میں اسپتال میں داخل کرائے گئے مریضوں کی تعداد 130 ہو گئی ہے۔ کراچی سے خیبر تک کے احوال سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وقت نیوز کے ساتھ رہیے۔